دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اگلی بات چلیے، آج دن کون سا ہے؟ تاریخ یا دن؟ دن. آج منگل کا دن ہے جی. اچھا، جماعت احمدیہ کے نزدیک منگل کا دن کیسا ہوتا ہے؟ آپ حوالہ دیں پھر ہم چیک کر لیتے ہیں. حوالہ دے دیں. درخواست ہے کہ موضوع سے متعلق نہیں ہے. اگر ڈاکٹر صاحب اگر باتیں اس طرح کی کرنی ہے الگ سے پروگرام رکھیں، یہ ان سے کہیں 1 to 1 پروگرام کر لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک یہ شمس صاحب ذرا تسلی سے سن بھی لیا کریں، برداشت بھی کر لیا کریں جو میں بات کر رہا ہوں. عرض وہی ہے، میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں بھی یہی عرض کیا ہے کہ موضوع سے متعلق ڈاکٹر صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوشش کریں کہ موضوع سے متعلق بات ہو. یہ سارے وہی اعتراضات ہیں، وہ تو احتساب قادیانیت کی 60 جلدوں کے اندر جو 6000 اعتراض لکھا ہے وہ پڑھ پڑھ کے اگلا سنائی جائے گا. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اگر کوئی بھی اعتراض آپ کو ہے الگ سے وقت طے کریں، 5 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا بھی وضو کر کے لیکن آنا ہے وہ مناظرہ آپ کریں. ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کے موضوع پر آپ گفتگو اگر کرنا چاہتے ہیں تو بڑا ویلکم ہے آپ کو، نہیں تو کسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، جو ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے تو مائنڈ روسٹر میر کو سمجھ آ گئی کہ اب معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے. اچھا، میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں. مرزا قادیانی کی جو ڈیتھ ہے وہ 26 مئی 1908 کو لاہور برانتھ روڈ پر ہوئی. اچھا، اس دن جو دن تھا وہ منگل کا دن تھا، اور اتنے عرصے کے بعد پھر دوبارہ 26 مئی منگل کے دن ہی آئی، اور ان لوگوں نے پروگرام بھی رکھ لیا، اور اوپر سے رضائی بھتیجے کو بھی انہوں نے بلا لیا اپنے پروگرام میں. تو جو ہی میں نے یہ پوچھا کہ آج دن کون سا ہے تو مائنڈ روسٹر میر کو فوری سمجھ آ گئی کہ معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے. تو مائنڈ روسٹر میر نے اسی وقت بیچ میں مداخلت کر کے یہ کہا کہ یہ ہمارے موضوع کے مطابق نہیں ہے، بات وہ کی جائے جو موضوع کی مطابق ہے. تو مائنڈ روسٹر میر صاحب یہ بھول گئے کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا لائیو سٹریمنگ تو ڈاکٹر صاحب بولنے لگے تو بیچ میں وہ ان کا ایک اور مربی ہے اس نے مداخلت کی اور اس نے شروع کر دیا کہ جی آپ اپنے نام کے ساتھ RB لگاتے ہیں. اس وقت تو کوئی نہیں بولا کہ جی یہ موضوع کے مطابق بات نہیں ہے، سارے خوشی سے سارا ہلانے لگے. تو اب دیکھیں جب میں نے منگل کا پوچھا ہے تو پرابلم بن گئی. چلے کوئی بات نہیں. اچھا، یہاں میر سلیم نے ایک بات کہی کہ وضو کر کے آئیے گا، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ یہ بھی کہے گا کہ شاید کوئی روزہ رکھ کے ایسا عمل کیا فیل کیا کہ جس وجہ سے وضو اور نہیں کر سکے یا نہانا پڑے گا انہیں. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سلیم میر نے ایسا کیوں کہا، اس کو کس بات کی پرابلم تھی کہ یہ ایسے الفاظ کہہ رہا ہے، کیا دکھ ہے اس کو. تو میں آئیے آپ کو اس دکھ کی چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں گروپوں میں ٹائم دیتا تھا واٹس ایپ گروپ کے اندر، تو وہاں ایک گروپ کے اندر مرزا صاحب کے خوابوں کا ذکر چلا. تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کر کے اس گروپوں میں لگا دی. تو جو کہیں سلیم میر نے بھی دیکھ لی، اس وقت سے اس کو نا وہ غصہ چڑھا ہوا ہے مجھ پہ. تو وہ خواب کچھ یوں تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عادت تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو اس نے کہا تھا کہ جس کو بھی جو خواب آئے وہ مجھے ضرور سنایا کرے آ کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی بندے کا خواب مرزا قادیانی کی کسی بات کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا تو مرزا صاحب اس کو اپنی سچائی کا نشان بنا لیتے کہ دیکھا تمہیں آج خواب آئی ہے، میں نے فلاں دن یہ بات کہی تھی. تو یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو اس طرح وہ بیچارے لوگ خاموش ہو جاتے کہ ٹھیک ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندہ آ کے مرزا صاحب کا ماننے والا ان کی محفل میں بیٹھا. مرزا صاحب نے خوابوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا، کس کو کیا کیا خوابیں. ان لوگوں نے اپنی اپنی خوابیں سنائیں. جب اس بندے کی باری آئی تو مرزا صاحب نے اس سے کہا کہ تمہیں کوئی خواب آئی ہے تو سناؤ. اس نے کہا جی خواب تو مجھے ضرور آئی ہے.
मगर हजूर मैं ख्वाब ना मजमे में सुना नहीं सकता। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बस कोई मजबूरी है जिसलिए मैं ख्वाब अपनी नहीं सुना सकता। तो बहरहाल मिर्ज़ा साहब ने ज़ोर दिया उसको। अब मिर्ज़ा साहब को ये तो पता नहीं था ख्वाब किस किस्म की आई होगी। तो बहरहाल अगर मिर्ज़ा साहब को ख्वाब में नंगी मोहम्मदी बेगम मिल सकती है, जाली वाले कपड़े पहन के मिल सकती है, और मिर्ज़ा साहब उससे जफ़ियाँ पपियाँ डाल सकते हैं, सॉरी पपियाँ नहीं जफ़ियाँ, यानी बगलगीर हो सकते हैं यूँ कह लीजिए, तो फिर मुरीद तो वो मिर्ज़ा साहब का ही था बहरहाल। तो जब मिर्ज़ा साहब ने ज़्यादा इसरार किया तो उसने बड़े मासूमाना अंदाज में मिर्ज़ा जी को आगे से ये जवाब दिया कि हज़रत ख्वाब भी आई है, मगर ख्वाब में जो फ़ेल हुआ है वो मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना अर्ज़ करता हूँ, वो भी आपके कहने पे कि आपने मजबूर कर दिया कि जब अंदर जाएंगे तो बेगम साहबा से कहिएगा गुस्ल कर ले। तो ये मैंने उस वक़्त ख्वाब जो लोगों को सुनाया, तो शायद आज सलीम मीर साहब उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। तो चलिए सलीम मीर साहब, आप तो कहते रहेंगे, तो शायद वो जो मुरीद था वो भी काजी यार की तरह होगा, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। तो आइए देखते हैं कि सलीम मीर आगे क्या कहता है, या लाइव स्ट्रीमिंग में आगे ये लोग क्या कहते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। तो बड़ा वेलकम है आपको, नहीं तो किसी दूसरे को मौका दें। बाकी रह गई बुला करके भागने वाली बात। मैंने आपको कहा था कादियानी जो है वो 2 नुक्ते वाले काफ से लिखे, खींचे हुए काफ से ना लिखें। मैंने आपको वार्निंग दी थी, मैं लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं कि आइंदा से आपने अगर कभी कादियानी काफ डंडे वाले से लिखा तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। आपने वादा करके कि मैं नहीं लिखूंगा, फिर वादा खिलाफी की और आपने दोबारा मुझे कादियानी काफ डंडे वाले से लिख के भेजा, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, सलीम मीर साहब ने कहा कि ये कादियान को काफ डंडे वाले से लिखते हैं, तो मैंने इनको मना किया। अच्छा, ये कहते हैं मैंने वजाहत कर दी है। सलीम मीर साहब बताइए तो सही, ये डंडे वाले काफ से कादियान लिखने से आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या मसला है? चले, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मुझे तो बताना पड़ेगा। तो अभी नहीं बताता, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि डंडे वाला काफ से आपको इतनी चिढ़ क्यों है। तो चलिए आगे सुनते हैं कि आपकी चीखें कहाँ तक जा रही हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। तो ये देखिए, सलीम मीर साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा कंट्रोल कीजिए, यानी रज़ाई भतीजे को इन बातों की तरफ ना जाने दीजिए। तो सलीम मीर साहब, बातें तो खुलेंगी, ज़ाहिरी बात है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो हौसला रखें, बर्दाश्त कीजिए, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला बड़े तमीज़ से, बड़े इखलाक के साथ आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा, परेशान ना होइए। खिलाफी की और आपने दोबारा मुझे कादियानी काफ डंडे वाले से लिख के भेजा, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये उसकी वजाहत हो गई। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जरा कंट्रोल करें कि ला यानी गुफ्तगू ना यहाँ ये करें और वक्त ज़ाया लोगों का ना करें। काफी दोस्त गुफ्तगू के मुतल्लिक बात करना चाहते हैं। जी शमसुद्दीन साहब, आज का आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। आज के जो मौजू है उससे मुतल्लिक क्या आपका कोई सवाल है? अच्छा चले, ठीक है, मेरा माइक म्यूट कर देते हैं। चले कोई बात नहीं, मैं शिकवा नहीं करता, सारे लोग देख रहे हैं, शिकवा कर करके मैं थक गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इसी मौजू के मुताबिक चलना है, तो मैंने कुछ लड़ियां मिलानी है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आज भी मंगल है, ठीक है, डेट बाद में चलेगी, डेटें तो आपको भूलती नहीं है। हो सर बहुत सारे लोगों को मंगल के दिन की हैसियत से ना पता हो कि जमात अहमदिया के अंदर मंगल के दिन की हैसियत क्या है, और चूंकि आज भी मंगल है तो इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या आपके नजदीक कोई ऐसी बात आपको पता है कि मंगल का दिन जमात अहमदिया में अच्छा नहीं समझा जाता, या मनहूस है या नहीं है, क्या आपके मन में है? शमसुद्दीन साहब, मैंने इसका बारे में आपको अर्ज किया था। पहली बात, अगरचे इसका हमारे जी माय डियर कज़न, आपको किसने कहा कि ये जो मैंने आपसे मंगल का दिन पूछा है इसका आज के मौजू के साथ ताल्लुक नहीं है? इसका बहुत गहरा इस मौजू के साथ ताल्लुक है। देखिए, जब मिर्ज़ा साहब फौत हुए 1908 के अंदर, तो डेट तो तब्दील नहीं होती, मगर दिन ज़रूर तब्दील होते रहते हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 110-12 साल के बाद आज फिर वो दिन आया है कि डेट वही है और दिन मंगल आ गया है। ऊपर से आपने प्रोग्राम भी आज मंगल वाले दिन रख लिया, तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके भी आपको इसकी वजाहत करूंगा कि ये मैंने आपसे मंगल वाले दिन का सवाल क्यों पूछा है। तो ज़रा इंतज़ार कीजिए और वाच कीजिए। मनहूस है या नहीं है,
क्या आपके मन में है? शमसुद्दीन साहब, मैंने इसका बारे में आपको अर्ज किया था। पहली बात, अगरचे इसका हमारे आज के मौजू से ताल्लुक नहीं है, मैंने कहा आप हवाला पेश करें, आप जबानी बोली जा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप ये बता दें कि आया आप मनाजरा करने आए हैं या सवाल पूछने आए हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर तो सवाल पूछने की यहाँ पर हमने ये हमारे जो है प्रोग्राम, अभी तक आपने को सवाल हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के विसाले मुबारक के ऊपर कोई एक भी सवाल करने की आपको तौफीक नहीं मिली, ठीक है? मैं जरूरत कहूंगा तो फिर आप जो है ना आप कहेंगे कि पता मेरी वो कर दी है, आपको तौफीक नहीं मिली। इसका मतलब क्या समझा जाएगा? दोस्त ये समझेंगे इसका मतलब कि जो हमने विसाले मुबारक के हालात कल और आज बताए, शमसुद्दीन साहब अग्री करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब इस हज़रत मसीह इस्लाम के विसाले मुबारक के ऊपर कोई आपने कोई सवाल है आपका? अभी तक तो आपने नहीं किया। अच्छा, आप बताइए, आपके हजरत मसीह मौद जो हैं, मसीह मौद जी कह लेते हैं, उनका विसाल जो है ये कौन से दिन को हुआ था? मैंने आपको इसका जवाब दे दिया हुआ है मोहतरम, आप मेरे से मैंने नहीं सुना, जरा दोबारा बता दीजिए। मंगल जी, मंगल जी। लीजिए डॉक्टर साहब, आपने खुद इकरार किया है कि मंगल यानी ट्यूसडे, तो फिर बताइए जो सवाल मैं कर रहा था उसका कितना गहरा ताल्लुक है? चलें, आपको पता चल गया, शुक्रिया, आगे चलते हैं। दिन को हुआ था? मैंने आपको इसका जवाब दे दिया हुआ है मोहतरम, आप मेरे से मैंने नहीं सुना, जरा दोबारा बता दीजिए। मंगल जी, मंगल जी। आप, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलते डॉक्टर साहब, बकौल आपके, और मैं ये यकीन रखता हूं इस बात पे कि आपको मंगल वाले दिन के बारे में किसी किस्म की किसी रवायत का पता भी नहीं होगा, ऐसा ही है? आप जनाब हवाला पेश करें, आपको कैसे पता है कि मुझे नहीं पता? ये आप मेरे से भूल, आप क्या यहाँ पे वो जिक्सॉ पजल खेलने आए हैं? जनाब हवाला पेश करें, मर्द बने। सीरतुल मेहदी की रिवायत नंबर जो 12 है, उसके अंदर कोई मंगल के दिन का जिक्र है? आप पेश करें जनाब, आप यहाँ पे आए हैं, नाज़रीन पे देखें, नाज़रीन ये देखें, ये जनाब बहुत बड़े मुजाहिद हैं। नहीं, एक मिनट ठहरे, अब मेरा वक्त है। ये जनाब मुजाहिद खत्म नबूवत हैं जी, इनको हम बार बार कह रहे हैं कि जनाब हवाला पेश करें, हवाला पेश करें, हवाला पेश करें, लेकिन मुजाहिद खत्म नबूवत साहब जो कि वैसे बड़े जो कहते हैं जी मेरे पास पता नहीं बैग है, ये है, वो है, आखिर क्या वजह, ये हवाला क्यों नहीं पेश कर रहे हमारे सामने? जनाब मोहतरम शमसुद्दीन साहिब, आपको मैं फिर पूछ रहा हूं, आज के सवाल से आज का जो मौजू है इसके मुतल्लिक कोई आपका सवाल है या नहीं है? लेकिन अगर आपने मंगल के ऊपर ही बात करनी है तो कोई जुर्रत करें, कोई हवाला पेश करें जनाब। डॉक्टर साहब, आप तो गुस्से में आ गए हैं, साफ पता चल रहा है आपके चेहरे से कि आपको गुस्सा आ गया है। गुस्सा ना कीजिए, मैं आखिर में आपका कज़न हूँ, बेशक 2 साल छोटा हूँ। तो चलिए आगे जाके आपने खुद इस चीज़ को बयान करना है। बड़ा मासूम और सादा सा सवाल था, बड़े प्यार से मैंने पूछा था, क्या डॉक्टर साहब आपको इस किस्म की किसी रवायत का पता नहीं है? तो देख लिए नाजरीन, डॉक्टर साहब को पता है, मगर सवाल रज़ाई भतीजा करे और बड़े प्यार से मासूमाना अंदाज में करे तो ये जवाब नहीं देते। चलिए आगे खुद ही बताएंगे कि जी बिल्कुल इनको पता है, आपको पता चल जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज के सवाल से आज का जो मौजू है इसके मुतल्लिक कोई आपका सवाल है या नहीं है? लेकिन अगर आपने मंगल के ऊपर ही बात करनी है तो कोई जुर्रत करें, कोई हवाला पेश करें जनाब। हो गई, हवाला पेश करें। बात मुकम्मल हो गई जी जी। ये जिस मोबाइल पे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, जिस पे नेट का इसी के अंदर हवाला मौजूद है। मुझे मैं निकाल देता हूं। मैं तो बता रहा हूं कि सीरतुल मेहदी के अंदर हवाला है, जरा जाके देखिए, रवायत नंबर 12 मेरा ख्याल है, वो निकालिए जरा। जिल्द नंबर 1। जी जी, पूरी जिल्द जो हिस्सा 2 में है ना। हिस्सा 2 या हिस्सा अव्वल? हिस्सा अव्वल। अभी आपने 2 कहा था, फिर
नहीं, मैं कह रहा हूं असल में एक पहले हिस्से के अंदर 3 उन्होंने हिस्से डाले हुए हैं ना। जो जी, पहली जी। मोटी किताब है जिसे आप हिस्सा अव्वल कहते हैं, इसकी रिवायत नंबर है जी, ये मेरे सामने आगे पढ़ के सुना दूं। जी बताएं। हाँ जी, ये है, लिखा हुआ है, बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने कि हजरत मसीह मौद, चले अब कह देता हूं, अब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग है, आप जो कहते हैं मसीह मौद जी ने फरमाया कि दिनों में से मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। जी ठीक है, इसका जी। मतलब है कि आपकी जमात के अंदर मंगल का दिन जिसको है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो अच्छा। मिर्जा साहब की वफात किस दिन हुई? आपने कहा मंगल वाले दिन। अच्छा, ठीक। अब ये बात आप क्यों नहीं बता, क्या आप ईमानदारी से बताइए, आपको इस रवायत के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था? मुझे हाँ आप जिस रवायत की का जिक्र कर रहे हैं जी। जनाब मोहतरम, ये इस रवायत का जिक्र कर रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है मैंने यही पढ़ी है, मंगल के दिनों को दिन। माय डियर कज़न, देखिए मैंने कितने प्यार से आपसे ये पूछा है कि क्या आपको इस रवायत के बारे में पता है? आपने कुछ इजहार नहीं किया। देखिए लाइव डिबेट में और आम जो बंदा वीडियोस बनाता है इसमें बड़ा फ़र्क है। तो बहरहाल मुझे इस बात का अफसोस है कि आपको पता था मगर फिर भी आपने लाइल्मी का इजहार किया। तो ये इतना डर किस चीज़ का था आपको? क्या जमात की तरफ से ख़तरा था कोई? बता देते हैं जी, मुझे पता है कि ये मंगल वाला दिन जो हमारी रवायत में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक दो और भी गलतियां हैं, इंशाल्लाह मैं आगे आपको वो गलतियां आपकी बताऊंगा, यानी जमात की गलतियां बताऊंगा, दुरुस्तगी बल्कि आपकी करवाऊंगा। जिस तरह मैंने वो बरहन अहमदिया का सफ़ा नंबर 601 पे जो मिर्ज़ा साहब ने कुरान पाक की आयत गलत लिखी, और जब मैंने पढ़ा तो किसी मुरब्बी में हिम्मत नहीं हुई वो ये कहे कि शमसुद्दीन को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। तो चलिए इंशाल्लाह आगे मैं आपको वो गलती बता दूंगा, दुरुस्त करवा दीजिएगा अपनी किताबों में, और साथ फुट नोट पे लिख दीजिएगा कि रज़ाई भतीजे का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ये हमारी ये गलती बताई। चूँकि आप तो किताबें पढ़ते नहीं हैं, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए गलती भी बताऊँगा। तो माय डियर कज़न, बुरा ना मनाइएगा, आगे देखते हैं क्या हो। इसका मतलब है कि आपकी जमात के अंदर मंगल का दिन जिसको है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो अच्छा। मिर्जा साहब की वफात किस दिन हुई? आपने कहा मंगल वाले दिन। अच्छा, ठीक। अब ये बात आप क्यों नहीं बता, क्या आप ईमानदारी से बताइए, आपको इस रवायत के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था? मुझे हाँ आप जिस रवायत की का जिक्र कर रहे हैं जी। जनाब मोहतरम, ये इस रवायत का जिक्र कर रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है मैंने यही पढ़ी है, मंगल के दिनों को, दिन में से मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। जी बिल्कुल, 11 अच्छा। नंबर है, मेरे पास भी जी। यही है। जी, तो इसके ऊपर आपका क्या एतराज है कि जमात जो है मैं- वो इस मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझती? लिखा तो यही हुआ है कि अच्छा। मिर्जा साहब अच्छा नहीं समझते। जी जी मोहतरम प्यारे भाइयों, ये आपने देखा शमसुद्दीन साहब ने यहाँ से ये बात बयान की, लेकिन वही शमसुद्दीन साहब जो कि बहुत जनाब इधर उधर जाके कहते हैं जी मैं बैग निकालूं तो पता नहीं क्या निकल आता है, इनको ये तौफीक नहीं हुई कि इस रवायत। जी माय डियर कज़न, देखिए अब आपने रज़ाई भतीजे के बैग को ललकारा है, तो फिर रज़ाई भतीजा कुछ ना कुछ तो पेश करेगा ना। आपको अंदाज़ा होगा इस बैग की कितनी अहमियत है। देखिए आपके सारे मुरब्बियान ने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि ये जो 11 नंबर रवायत है इसके नीचे जो तशरीह लिखी है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आपने उस पर लेक्चर दिया। मगर मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपको इन किताबों की गलतियां बताऊंगा। तो वो बात जो मैंने पीछे की थी कि आप जब वहाँ उसको दुरुस्त करवाएं तो काइंडली वहाँ ये साथ ज़रूर लिखवा दीजिएगा कि ये दुरुस्तगी जो है रज़ाई भतीजे ने हमें कहा और हमने इस गलती को दूर कर दिया। मगर मेरा ख्याल है आपकी सुनेगा कोई नहीं। चलिए गलती नोट फरमा लीजिए, और आइंदा से बैग को ललकारने से पहले ख्याल कीजिएगा कि फिर इस तरह की गलतियां निकलती रहेंगी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने रवायत 11 नंबर से हमें पेश की है बात, इसमें गलतियां क्या है सुन लीजिए। ये मेरे सामने आ गई, इंशाल्लाह मैं स्कैन लगा दूंगा। इस रवायत से ये मुराद नहीं कि मंगल का दिन कोई मनहूस दिन है। ये मनहूस आपने खुद इसके अंदर अल्फाज लिखे हैं तशरीह के अंदर। और याद रखिएगा जहाँ मैंने ये रवायत पढ़ी है
तो मेरा पूरा फोकस जो था वो यही था कि ये जो लिखा है कि मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। रवायत के अंदर मैंने मनहूस का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मुझे भी पता है कि नीचे तशरीह में उन्होंने लिखा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये मनहूस दिन था, ठीक है ना। तो चले अब मैं आपको गलती बताने लगा। लिखा हुआ है बल्कि जैसा कि हिस्सा दोम की रवायत नंबर 311, 322 और 360। आपने तो ये पढ़ी भी नहीं होगी, आप तो सिर्फ बस एम में कर देते हैं। सुनिए, ये जो लिखा है ना 322, ये 322 जब आप रवायत पढ़ेंगे इसके अंदर किसी किस्म का मंगल के दिन का जिक्र कोई नहीं है, बल्कि 323 के अंदर है। तो काइंडली ये दुरुस्तगी करवा के मेरे नाम लगा दीजिएगा। अच्छा, अब ये जो आगे उन्होंने लिखा हुआ है 360, इंशाल्लाह मैं स्कैन लगाऊंगा, और मंगल का जिक्र 360 वाली रवायत में बिल्कुल ही नहीं है, वो 362 वाली रवायत के अंदर है आगे चल के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको दुरुस्त करवाएंगे और मेरे नाम के साथ करवाएंगे, और उम्मीद है कि आप आइंदा मेरे बैग के इस मतलब अंदाज में उसको नहीं छेड़ेंगे, बल्कि तौहीन नहीं करेंगे। और तौहीन करेंगे तो फिर देख लीजिएगा उस बैग के अंदर क्या होता है, उस बैग के अंदर कौन है, उनकी तौहीन होगी, मेरी नहीं होगी। तो ये दुरुस्तगी करवा लीजिएगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा माय डियर कज़न, चलें, अगर आप मसरूफ़ हों, आपके पास टाइम ना हो, तो ये एक आपके बहुत बड़े मुरब्बी हैं, बड़ा तेज़ बोलते हैं और अक्सर कहते हैं कि कटा तहकीक की है। इनको कह दीजिएगा, वैसे अगर इन्होंने तहकीक की होती तो ये लाजमी दरमियान में बोल पड़ते, क्योंकि इनकी आदत है ये बात पूरी सुनते नहीं अगले की। तो चले, अपने इस मुरब्बी से कहिएगा इसको चेक कर ले। और एक रिक्वेस्ट जो मुझे याद आई मैं वो आपसे करना चाहता हूँ, या ये जो लात उठाने वाले साहब हैं, क्या नाम है इनका, माइंड रोस्टर मीर साहब, जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, यही मिल के एक लेटर लिखे मिर्ज़ा मसरूर साहब को, और उन्हें कहिए कि आपके रज़ाई भतीजे ने ये गलतियां निकाली हैं तो ये दुरुस्त करवा दीजिए, ताकि रज़ाई चाचू के दौर, जो रज़ाई चाचू का दौर चल रहा है और साथ उसके रज़ाई भतीजे का चल रहा है, तो चलें आपकी किताबों में मेरा नाम भी आ जाए। उम्मीद करता हूँ आप मेरे रज़ाई चाचू तक मेरा पैगाम पहुँचाएँगे और फिर उनसे परमिशन लेकर ये गलतियाँ दुरुस्त करवाएंगे। वो जो पहला बरहान अहमदिया का फुट नोट लिखा गया ना, अब वो भी जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद लिखा गया, मगर आपने वहाँ भी मेरा जिक्र नहीं किया, तो कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस पे अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। साहिब जो कि बहुत जनाब इधर उधर जाके कहते हैं जी मैं बैग निकालूं तो पता नहीं क्या निकल आता है, इनको ये तौफीक नहीं हुई कि इस रवायत के नीचे ये जो नोट है इसको पढ़ लेते, और साथ ये बकायदा दिया हुआ है कि जैसा कि हिस्सा दोम की रवायत फलां 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 में तशरीह की जा चुकी है। इससे सिर्फ ये मुराद है कि मंगल का दिन बाज अजराम समावी, ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले सफा पर, कहाँ पे है जी, कि मख्फी असरात के मातहत अपने अंदर सख्ती और तकलीफ का पहलू रखता है। चुनांचे मंगल के मुतल्लिक हदीस में भी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल आता है कि मंगल वो दिन है, अब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जिसमें खुदा ताला ने पथरीले पहाड़ और ज़र्र सा चीजें पैदा की हैं। देखो तफसीर इब्ने कसीर आयत खलकुल अर्ज़ फी यौमैन, ठीक है जी। अब जनाब मोहतरम शमसुद्दीन साहिब, ये कितने अफसोस की बात है कि आपने जो एतराज उठाया, बड़ी जनाब बार बार जा रहे थे, उसी एतराज के नीचे वजाहत मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया गया है। ये बताया गया है कि जो सीरतुल मादी हिस्सा दोम की फलां फलां रवायत में इसकी वजाहत मौजूद है। इसके बावजूद दे प्यारे भाइयों आप देख लें, ये हालत है मुजाहिदीन खत्म नबूवत की। देखिए माय डियर कज़न, आपने कहा कि ये हालत है मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की। देखिए ये कैसा आपका रद्द-ए-अमल है कि मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत या मुजाहिद ख़त्म नबूवत बल्कि आप कह लें, रज़ाई भतीजा आपकी किताबों की गलतियां दुरुस्त करवा रहा है। ये हालत है मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की कि वो आपकी गलतियां आपको बताते हैं।
आप है कि समझने को समझना ही नहीं चाहते। देखिए किस किस एंगल से मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है। तो डॉक्टर साहब, मुझे जैसे आपसे मेरी पहले भी बातचीत होती है, तो मुझे जब ये गलती दुरुस्त हो जाए और साथ मेरा छोटा सा नाम लिख दीजिए, जलालुद्दीन शम्स भी लिखा हुआ था, तो चले आर भी लिख दीजिएगा खाली, या शम्स ही लिख दीजिएगा, तो मुझे बता भी दीजिएगा कि जी मैंने ये बता दिया आगे और इंशाल्लाह ये हो रही है। तो पता चल गया मुजाहिद ख़त्म नबूवत क्या करते हैं काम। उम्मीद है बाकी मुरब्बियान को भी पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आप और क्या कुछ मुजाहिदीन के बारे में कहते हैं। मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया गया है। ये बताया गया है कि जो सीरतुल मादी हिस्सा दोम की फलां रवायत में इसकी वजाहत मौजूद है। इसके बावजूद दे प्यारे भाइयों, आप देख लें, ये हालत है मुजाहिदीन खत्म नबूवत की। इन्होंने वो पर्चियां निकालनी होती हैं अवाम को गुमराह करने के लिए। अच्छा, दूसरा, आपने शमसुद्दीन साहब ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया जमात अहमदिया जो है वो मंगल के दिन को मनहूस समझती है। चले फर्ज करें हम आपकी ये बात मान भी ले शमसुद्दीन साहब, अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। ये हर शख्स जानता है कि एक ही वाकया एक शख्स के लिए वो गम का मूजब होता है और दूसरे शख्स के लिए वो अच्छाई का मूजब होता है। मैं उसको मिसाल दे देता हूं आपको। मैं मसलन लंदन से रवाना हो रहा हूं अपनी फैमिली को छोड़ के, तो मेरी फैमिली के लिए ये गम का दिन है। लेकिन मैं फर्ज करें अगर जा रहा हूं, कनाडा पहुंच रहा हूं अपने किसी भाई को मिलने के लिए, तो मेरे भाई के लिए वही दिन खुशी का दिन है। तो ये अगर आपकी बात मान भी जाए तो हम तो इस तरह से इसको देखेंगे कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई मंगल वाले दिन, तो हम जमात अहमदिया के लिए, वो जो उस वक्त वहां पे अहबाब मौजूद थे, उनके लिए वाकई ये गम का दिन था। बिल्कुल उसी तरह गम का दिल था जिस तरह सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा उस दिन, जिस दिन हमारे प्यारे नबी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। लेकिन एक और तरह से देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि जो नफ्स मुतमइन्ना है वो जब उसकी रूह निकलती है तो अल्लाह ताला जो है उसको ये आवाज आती है, गोया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतुम मर्ज़िया। तो एक दूसरे पहलू से वही दिन जो सहाबा के लिए गम का दिन था, वही दिन में ये फरमाता है कि जो नफ्स मुतमइन्ना है वो जब उसकी रूह निकलती है तो अल्लाह ताला जो है उसको ये आवाज आती है, गोया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतुम मर्ज़िया। तो एक दूसरे पहलू से वही दिन जो सहाबा के लिए गम का दिन था, वही दिन जो सहाबा के लिए एक लिहाज से मनहूस दिन था। अल्लाह का प्यारा नबी आपसे रुखसत हो गया, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के लिए वो अज़ीम शान दिन था। क्यों? अल्लाह ताला वो मालिक हकीकी जिसने आपको भेजा, आपकी रूह उसके कदमों में पहुंच गई। शमसुद्दीन साहब, आपने जो सवाल किया उसकी हकीकत लोगों को पता चल गई। आपकी इल्मियत भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ऊपर रोज़े रोशन की तरह खुल गई होगी। आपका कोई दूसरा सवाल है या लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात और विसाल से मुतल्लिक होना चाहिए। जी, इनका माइक खोल दें। जी शमसुद्दीन साहब। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने इतना लेक्चर दिया इस बात पे। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि क्या सहाबा कराम ने या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस से ये मिलता है कि जिस दिन आपका विसाल हुआ उस दिन को नौज़ बिल्लाह मनहूस दिन कहा जा सकता है? ठीक है, या किसी सहाबी ने उस दिन को ये मनहूस कहा हो? आपकी जमात की जो किताब है और मिर्जा साहब के जो कमरुल अंबिया हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अच्छा नहीं समझते थे मंगल के दिन को। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आज का दिन भी मंगल है और डेट आपको पता है, और आपके मसीह मौऊद जी का विसाल भी आज के दिन ही हुआ,
जिस दिन मनहूस दिन समझा जाता है उसी दिन फिर वो मिर्जा साहब का विसाल हो गया। तो आपने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, आप इस लेक्चर की दलील में हमारे सामने कोई इसी तरह की आए, कोई वो हदीस रखे, कोई ऐसा हमारे पास चीज हमें बताएं कि सहाबा ने नबी सल्लम के विसाल वाले दिन को मनहूस साबित किया हो या कहा हो। अगर आप नहीं कर सकते तो हमने तो आपके सामने लिखा हुआ आपकी तहरीर पेश की है, जिसके अंदर लिखा है कि मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे, और फिर अल्लाह ताला ने उस ना अच्छे दिन को आपके सामने पेश कर दिया। चलें यहां पर बात छोड़ देते हैं, लोग खुद फैसला कर लेंगे बात क्या। अच्छे दिन को आपके सामने पेश कर दिया। चलें यहां पर बात छोड़ देते हैं, लोग खुद फैसला कर लेंगे बात क्या थी, आपने क्या दलाइल दी और मैंने क्या दिए।